Good morning, students. Good morning. क्या पढ़ चुके थे बेटा? इफेक्ट ऑफ फोर्सेस, यस और नो? इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, यस और नो? You have complete some effect of forces. Yes, sir. Like force can move or tends to move an object, right? Force is used to bring an object at rest, right? Force can change direction of an object, direction of an moving object. Force can increase and decrease speed of an object, and last case, force can change shape of the object. इसमें कौन कौन से केस पढ़ चुके थे बेटा? कौन से केस कंप्लीट कर लिए थे? सर आज को सर हमको है ना सर कौन सा करना पड़ता है? लास्ट केस. वेट अ मिनट. Last केस. Force can change shape of the object. Yes or no? यस सर वही करना. Force can change a shape on shape of the object. Okay. Let's start. हेलो सर. Yes. सर स्क्रीन लोड नहीं. Give me one. Wait for some time. Okay. Can you able to see book? Yes or no? Can you able to see book or no? Okay. Yes sir. Okay. We have completed some effect like force can change the state of motion. Okay. Like this. Next, force can change the shape on an object. सर स्क्रीन Right? Yes. नहीं दिख रही स्क्रीन. Sorry. Yes. Yes बेटा, क्या पूछ रहे हो? Ask again. Hello. स्क्रीन स्क्रीन नहीं हो रही बेटा सभी के? स्क्रीन लोड हुई कि नहीं? Can you able to see book? स्क्रीन इज विजिबल. Okay. ओके बेटा, अगर जिसका लोड नहीं हो पा रहा है दोबारा लेफ्ट होकर के रिज्वाइन कर लो. ओके. Okay. Force can change the shape on object, right? In activity number 11.5, there are some examples in which you can see the force can change the shape on object, right? Okay. Some situations have been given in column 1 of table 11.2. See table 11.2, column number first, description of situation, right? A lump of duck on a plate.
ये किसी स्टूडेंट ने मुझे रिप्लाई भी किया था, यस नो, ये वाला किया था, प्रेस इट डाउन और यू हैंड, जब बेटा आप आटा लगाते हो है ना, उसमें हम क्या करते हैं, उसका शेप चेंज करते हैं बाय अप्लाई अ फोर्स, यस नो, इफ यू अप्लाई अ फोर्स, if you apply a push in Sorry, downward voice is direction, not coming. voice is not coming. Okay, give me 1 minute. The voice is coming, sir. One minute. The voice is clear only. Okay. Yes, sir. Okay. You can see in this table there are some examples related to force can change shape on an object. If you applied a force on lump of block, right, the shape of this What is you lump? can change. What is lump? मीन्स बेटा आप आटा लगाते हो ना, लम्स मतलब वो एक ढेर जो हम बोलते हैं ना, पूरा ढेर जो होता है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं लम्प, ठीक है, किसी भी चीज का ढेर बनाते हैं ना उससे, तो जब उसको पुश करते हो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, देन शेप ऑफ दिस विल बी चेंज. नेक्स्ट, स्प्रिंग सीटेड टू द सीट ऑफ बाइसिकल. अगर आपने स्प्रिंग देखी हो, देखो यहाँ पर एक बाइसिकल दे रखा है, बाइसिकल का स्प्रिंग दिख रहा है बेटा आपको फिगर में, देखो. Yes, sir. Right? If you sit on the seat, then you applied a push in downward direction due to your weight. Yes or no? If you sit on Yes, sir. a seat, then you applied a push. You applied a push in downward direction Sir. due to your weight. Yes. So. Sir, rubber this नहीं force- आता है? बेटा आता है ना रबड़, Rubber बट नहीं, अभी हम बात करें उसकी एग्जाम्पल. बेटा अभी हम 1 by 1 एग्जाम्पल लेंगे, रबड़ बैंड का एग्जाम्पल भी लेंगे. यस और नो? देयर आर मेनी एग्जाम्पल, राइट? वी हैव डिस्कस्ड 1 एग्जाम्पल एंड वी हैव टू ऑन सेकेंड एग्जाम्पल. इन दिस एग्जाम्पल you use a spring in seat of bicycle, and when you sitting on a bicycle, then you applied a force on seat due to your weight. Yes or no? Due to your weight, the spring will be compressed. Yes or no? If you Yes, applied a force on a seat due to your weight, the spring will be compressed. So there is an example of shape change, right? Change of shape due to force means spring will be compressed. Next example, rubber band, right? A rubber band suspended from a hook or nail fixed on a wall. You can see in this image there are a nail in wall and a rubber is hanging on this nail, and you pull one end of rubber band in downward direction, then rubber band will be increased. Yes or no? Due to your pulling force, the rubber band will be increased, right? So the shape of rubber band will be changed due to your pulling force. Yes or no? Right? Understood? If you applied a pull force on rubber band, the shape of rubber band will be changed. The shape of rubber band will be increased. The length of rubber band will be increased. So you can change the shape of rubber band by applying a pulling force. Understood? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Again, we can discuss another example. A plastic or metal scale balanced between two books. See in this figure, there are two books and a plastic scale is suspended between two books.
right? And you applied a weight on this plastic or metal scale. You can use plastic scale. No, sorry, you can use metal scale, because metal scale is more bent as compared to plastic scale, right? You can use metal scale because metal scale has more bend capacity as compared to plastic scale. Yes or no? If you use metal scale which suspended between two books and you push scale in downward direction, or you can kept a box on this scale, then the scale will be bent. Yes or no? If you applied a push on this scale, then scale will be bent. Yes or no? Yes, sir. Understand? Right? Yes, sir. So this is again one example of change of shape due to force, right? Okay. So force can change the shape of an object, right? Force can change shape of object. Okay. What do you conclude from the observation noted in table 11.2? What happened when you applied a force on a inflated balloon by pressing it between two planes? मीन्स जब हम बैलून को बेटा पुश करते हो, जब बैलून को पुश करोगे तब भी उसका शेप चेंज होता है. यस और नो? इफ यू पुश बैलून बाय योर हैंड, then its shape will be changed due to applied pushing force. Yes or no? Yes, sir. Next question: what happened the shape of ball of chalk when it is rolled to make चपाती? जब चपाती बनाते हो, ये एग्जांपल किसी गर्ल्स ने दिया था. किसने दिया था बेटा? ये एग्जांपल दिया था ना किसी ने? शेप ऑफ. Yes, sir, मैंने. Yes, वो एग्जांपल है, राइट? अंडरस्टूड? यस और नो? जब हम बेटा डॉग से क्या करते हैं बेटा? पहले बॉल बनाते हैं ना, बॉल का शेप बनाते हैं, राइट? चपाती बनाने से पहले क्या करते हो आप? क्या बोलते हो उसको गुजराती में? जब आप बनाते हो चपाती, उससे पहले जो एक रोलिंग छोटा सा बनाते हैं बेटा, उसको क्या बोलते हैं हम? लुआ. लुआ, राइट? उस लुआ पर जो आप फोर्स लगाते हो, राइट, उससे क्या बन जाता है? उस लुए का शेप किसमें चेंज होता है? चपाती में, राइट? अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. There are many examples you can see, right? You can make chapati. You can see some example in this table. There are many examples where you can see the force can change the shape on object. Like next example, what happened? What happened when you press a rubber ball placed on a table? What will be happen? If you press a rubber ball placed on table, then shape of rubber ball will be changed. Yes or no? The shape. Yes, sir. Yes, sir. Right. If you push a rubber ball which placed on a table, the shape of rubber ball become oval shape, like an oval shape. Yes or no? Yes, sir. Right. So again, this is an example of change of force, change of shape of the object. Next, in all this example, you saw that the application of force on an object may change its shape, right? Having performed all above activities, you would learn release the force. मीन्स हम सब कुछ लिख चुके हैं, वापस से वन बाय वन बेटा बुक वाला डिस्कस कर चुका है, मैं आपको लिखवा चुका हूँ, राइट? तो उसको पढ़ते हैं. फोर्स मेक एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम रेस्ट. यस और नो? लिखा था फर्स्ट वाला? फोर्स Yes, कैन. sir.
move or tends to move an object at rest, right? And second is force may change the speed of object if it is moving. We have right, force can change, force can increase or decrease speed of moving object. Yes or no? We have write it. Yes, sir. Next, force may change the direction of object. We also write force can change direction of object in our notebook. Next example, force may bring about a change in shape on object. We have noted it. Force can change shape on object, right? Force may change some or all this effect, right? Means force can change motion of object, force can change speed of object, force can change direction of object, force can change shape on object, right? These all are effect of force. Yes or no? सर Yes. Yes, सर बेटा. हम बॉल को पुश करते हैं तो सर वो कौन सा फोर्स होगा? पुश कर रहे हो बेटा तो पुश फोर्स है, मस्कुलर फोर्स आप लगा रहे हो उसमें. मसल से पुश करोगे, किससे? मसल्स का यूज कर रहे हो बेटा. अगर आप पुश कर रहे हो तो मसल्स यूज हो रही कि नहीं? यस और नो? Yes. दिस टाइप ऑफ फोर्स known as muscle force. If you applied a force on any object, this is known as muscle force, and this is the type of contact force, right? Okay. Will a force may cause one or more of this effect? It is important to remember that none of this action can take place without the action of force. Means अगर आप फोर्स नहीं लगाओगे तो इसमें से कुछ पॉसिबल नहीं है. ना तो आप ऑब्जेक्ट को मोशन करवा सकते हो बेटा, ना ही ऑब्जेक्ट को रोक सकते हो. अगर फोर्स नहीं लगाओगे तो ना उसका आप शेप चेंज कर सकते हो, आप कुछ नहीं कर सकते हो. अगर आपको ये सब करना है तो किसका रिक्वायरमेंट है? फोर्स. वी नीड अ फोर्स टू डू दिस एक्ट्स, राइट? ओके. It is important, and thus an object cannot move by itself, it cannot change its shape by itself, it cannot change direction by itself, and it cannot change shape, cannot change by itself. समझ में आया बेटा एग्जाम्पल? यह पैराग्राफ समझ में आया कि नहीं? Means without force Yes, sir. you cannot change shape on object, you cannot change speed of object. Yes. So if we try to change or we try to change shape, speed, then we need a force. Okay. So there are some type of forces. First contact force. Second is first type is Friction force. second Friction force. non-contact. Friction force. There are two type of forces. First we can classify the force. First type is contact. Second is non-contact force. Again we classified contact force in three types. First is muscular force, And friction force. friction force, and third is tension force. सर हमारे में सर टेंशन फोर्स नहीं दिया. हाँ पर हमें पढ़ना है, नहीं तो हमें याद तो करना है ना कुछ एक्स्ट्रा. Yes or no? And non-contact force? Non-contact force are first Magnetic force. magnetic force, Electric force. Gravitational force. gravitational force, right? Okay. So we have discussed one by one. Chalo, contact force means this type of, for apply this type of force we need contact between object, both objects, right? First who applied a force, second is on which applied a force, right? We should contact between two objects for work this type of force, right? Like muscular force. Okay. Can you push or lift a book lying on a table without touching it?
यस और नो? बेटा जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसको आपको आंसर देना है. कैन No, sir. यू पुश No, sir. और लिफ्ट a book No. laying on a table? No. No, sir. Why no? Sir, because without contact we can't use muscular force. Very good. Right. Without contact, muscular force does not work. Right. First, we need contact between object and our, right, our hand. Right. So, if we want to apply a muscular force, first we need contact between both objects. Okay. Can you lift a bucket of water without holding it? Can you lift a bucket of water? No, sir. Without? No. Again, why no? Because We have to apply a force. So because we have to apply force. applied a muscular force, right? Because we applied a muscular force, and for muscular force, for working of muscular force, we need again touching of object. Generally, to apply a force on an object, your body has to be in contact with the object. Yes or no? Yes? Right? Yes, sir. Yes, sir. Right. If you want to pick up a chalk, if you want pick up a chalk from a floor, then first you should contact with chalk and your finger. Yes or no? Your finger and chalk should be contact. Otherwise, we cannot apply the force on chalk. Right? Okay. Next, the contact may also be with a help of stick or piece of rope. Right? जैसे कि हमें कुछ स्टिक या फिर कुछ भी ना रूप वगैरह होता है, रस्सी जो होती है, उसके साथ में हमें क्या करना पड़ेगा बेटा? कांटेक्ट करना पड़ेगा. When we push an object like school bag, push. अगर आपको we push an object like a school bag or lift a bucket of water, where do the force come from? तो फोर्स कहाँ से आता है बेटा? अगर आप पुश करते हो किसी ऑब्जेक्ट को, आपका जो स्कूल बैग उसे लिफ्ट कर रहे हो या बुकेट से मसल से, Sir, from hand. फ्रॉम हैंड मीन्स मसल्स. यस और नो? Yes, sir. From hand is muscles, right? If you want to lift your back, then you apply a force from your muscles. Yes or no? Right? So this type of force is known as muscle force. Right? Okay. We push an object like a school bag or lift a bucket of water. Where does the force come from? The force comes from our muscles, right? This force is caused by the action of muscles in our body. Understood? Yes or no? Yes, sir. Right? Sir. Okay. इसको अंडरलाइन करो बेटा. The force resulting due to the action of muscles is known as muscular force. अंडरलाइन कर लो. इसको नोटबुक में लिखना है बेटा आपको. ठीक है? ऐसे मैं लिखवा दूंगा नोटबुक में. अभी अंडरलाइन करो बुक में. The force resulting due to the action of muscles is known as muscular force. Sir, done. Okay. फिर देखो. It is the muscular force that enable us to perform all activities involving movement or bending of our body. Right? तो जितने भी एक्टिविटीज है बेटा, जैसे आप मूव कर रहे हो, आप वॉकिंग कर रहे हो, आप जंप कर रहे हो,
राइट। तो ये जितनी भी एक्टिविटी है, आप किसी के हैंड को बेंड कर रहे हो, जितनी भी हमारे एक्टिविटीज है बॉडी के अंदर, वो किसकी वजह से पॉसिबल है? मसल्स की वजह से। यस और नो? जो हमारी मसल्स है वो बेंड होती है, इसकी वजह से हमारी जो बॉडी होती है बेटा वो बेंड होती है, उसी की वजह से हम मोशन कर पाते हैं। यस और नो? तो ऑल एक्टिविटी रिलेटेड टू अस ड्यू टू मसल्स, एंड दिस टाइप ऑफ फोर्स इज नोन एज मस्कुलर फोर्स, राइट? Sir, I have Yes, doubt. sir. Yes, yes. Yes, Sir, beta. all activities that any person or any human do will be considered in muscular force. Yes, yes. If you use your muscles for applied force, then this type of force is known as muscle force. Right. It may be human, right? It may be animal, all, right? So this is known as muscle force. It may be animal, okay? It may be animal, not only human. It may be animal, right? Animal also has muscles, and we can apply muscular force. Okay? Understood? Yes, sir. Okay. In class 7, you have learned that in the process of digesting of food get pushed through a alimentary canals. आपने वहां देखा था बायोलॉजी में कि जो एनिमेट्रिकुला है उसमें हम पुश करते हैं, जो हमारा फूड होता है उसको पुश करते हैं, तो मसल्स भी तो है जो अप्लाई कर रही है फोर्स बेटा, राइट? सो मसल्स अप्लाई अ पुश, राइट? कुड इट बी मसल्स फोर्स दैट डू इट? यस, we applied a force by our muscles. You also know that lungs expand and contract will we inhale and exhale air during breathing. जब आप ब्रेथिंग करते हो उस टाइम पर जो बेटा हमारा लंग्स है होते हैं वो या तो क्या करते हैं बेटा, जब हम इनहेल करते हैं या एक्सहेल करते हैं एयर को, उस टाइम पर वो क्या करते हैं बेटा, एक्सटेंड होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ये सब किसकी वजह से पॉसिबल है? ये सब मसल्स की वजह से पॉसिबल है, राइट? वेयर आर दिस मसल्स लोकेटेड विच मेक ब्रीथिंग पॉसिबल? ये कहाँ पर पॉसिबल है? डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हो सकते हैं, राइट? लंग्स में पॉसिबल है। अगर आप लंग्स ब्रीथिंग कर रहे हो तो ये कहाँ पर बेटा? लंग्स से आप ले रहे हो, ये सुनो। तो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होंगे हमारी बॉडी के, डिफरेंट डिफरेंट वर्क करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। जैसे सपोज करो मुझे वॉक करना है, तो वॉक करने के लिए कौन सी मसल ज्यादा यूज होगी बेटा? लेग मसल, जो लेग में मसल होगी, ये सुनो। सपोज करो मुझे बेटा बुकेट उठाना है, लिफ्ट करना है बुकेट को, तो कौन से मसल्स यूज करोगे ज्यादा? हैंड मसल, Hand muscle. डिपेंड ऑन योर वर्क। कैन यू लिस्ट द फ्यू मोर एग्जाम्पल ऑफ फोर्स created by the muscles in your body? तो ये आपको लिख के लाने हैं 5 एग्जाम्पल। जैसे कि लिफ्ट कर रहे हो तो हैंड मसल्स, वॉक कर रहे हो तो लेग मसल्स, राइट? आप सभी को बेटा होमवर्क है 5 एग्जाम्पल आपको नोट करने हैं इसके, राइट? ओके, नेक्स्ट, एनिमल आल्सो मेक यूज ऑफ मस्कुलर फोर्स टू कैरी आउट देयर फिजिकल एक्टिविटी। बताया था मैंने, ये हम ही नहीं करते बेटा, जितने भी एनिमल्स हैं जिसके अंदर भी मसल्स है, हमारे अंदर मसल्स नहीं है, एनिमल्स के अंदर भी मसल्स है, एनिमल्स भी वॉक करते हैं, राइट? अब देखो यहाँ पर एक बुकेट दिख रही है, आपको कार्ट दिख रहा है, दिख रही है? एनिमल्स दिख रहे हैं बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. है ना? तो इसको जो मोशन करवाएंगे तो क्या करेंगे बेटा, इसको पुल करेंगे, उस पर पुल अप्लाई करेंगे, राइट? तो किसकी वजह से करेंगे? बुश अप्लाइड पुल ड्यू टू देयर मसल्स। यस और नो? उनकी जो मसल्स होगी उसी से तो वो उस पर पुल अप्लाई करेंगे, राइट? जो हमारे पास में आपको इमेज दिख रही है, इमेज दिख रही है? Yes, sir. बुल्स दिख रहे हैं इसमें, Sir. तो बुल्स जो होते हैं वो भी क्या करेंगे बेटा, इसमें मसल्स यूज करेंगे, जैसे नेक वाली मसल्स यूज करेंगे, आगे की तरफ पुश करने के लिए लेग वाली यूज करेंगे, राइट? तो नेक पर और जो भी मसल्स होगी उसके लेग की वो मसल यूज करेंगे, राइट?
सो मसल फोर्स का मीनिंग ये नहीं कि हम ही यूज करते हैं, नहीं, सारे जितने भी एनिमल्स हैं वो भी मसल्स यूज करते हैं, राइट। तो सिर्फ हम मसल्स फोर्स नहीं लगा सकते, एनिमल्स भी मसल्स फोर्स लगाते हैं। ओके, एनिमल्स आल्सो मेक यूज ऑफ मस्कुलर फोर्स टू कैरी आउट देयर फिजिकल एक्टिविटी एंड अदर टास्क। एनिमल लाइक बुलकॉक, horse, donkey and camels are used to perform various tasks for us. Right? In performing these tasks, they use muscular force. Right? तो different types of work होते हैं बेटा, जो animals भी वर्क करते हैं, उसमें भी मसल्स यूज होती है। ये बड़ा इजी है, इजी है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं बेटा? इजी है, यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. Yes. हमें क्या पता लगा? हमें ये पता लगा कि जो फोर्स मसल्स से लगता है, राइट, चाहे वो मसल्स एनिमल्स की हो चाहे ह्यूमन की हो, उसे क्या बोलते हैं? मस्कुलर फोर्स, राइट। सेकंड थिंग, मस्कुलर फोर्स विल बी वर्क व्हेन बॉडी विल बी कॉन्टेक्ट विथ ऑब्जेक्ट, यस और नो, राइट, दिस इज अ कॉन्टेक्ट फोर्स। तो फिर यहाँ पे लिखा बेटा, सिंस मस्कुलर फोर्स कैन बी अप्लाइड ओनली व्हेन इट इज इन कॉन्टेक्ट विथ एन ऑब्जेक्ट, अंडरलाइन करो, सिंस मस्कुलर फोर्स कैन बी अप्लाइड ओनली व्हेन इट इज इन कॉन्टेक्ट विथ एन ऑब्जेक्ट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ कॉन्टेक्ट फोर्स। अंडरलाइन करो बेटा इसको, सिंस मस्कुलर फोर्स कैन बी अप्लाइड only when it is in contact with an object, it is also called contact force. Sir, done. Okay, are there other types of contact force? Let us find out. और कौन कौन से contact force हो सकते हैं? Friction force और tension force, Tension force. right? So friction force का नेक्स्ट टाइम पे भी पढ़ेंगे बेटा, पूरा एक चैप्टर हमारा, इसके बाद जो चैप्टर आने वाला है वो चैप्टर है फ्रिक्शन फोर्स, वहां हम इसमें डिटेल में भी पढ़ेंगे। लेकिन अगर हम बात करें फ्रिक्शन की, तो कब वर्क करता है? रफ सरफेस पर। मैं थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ और है ना, मैं थोड़ा सा ओरली आपको डिस्कस कर देता हूँ, राइट। देखो, क्योंकि हम इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। डिटेल में कब पढ़ेंगे? नेक्स्ट चैप्टर में, राइट। नेक्स्ट चैप्टर में इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ वर्क करता है, ये हमारे लिए यूजफुल भी होता है, राइट, और हमारे ये इसका डिसएडवांटेज भी होता है। फ्रिक्शन फोर्स यूजफुल है, कहाँ यूजफुल है? अगर आप वॉक कर पाते हो बेटा, अगर हम वॉकिंग कर रहे हैं तो किसकी वजह से कर पा रहे हो वॉकिंग? फ्रिक्शन फोर्स, यस और नो? अगर हम चलते हैं कहीं पर बेटा तो किसकी? Yes, sir. फ्रिक्शन फोर्स, राइट। जैसे आपने देखा हो कि जो बनाना का जो छिलका होता है उस पर आप फिसल जाते हो, यस और नो? फिसल जाते हो ना? Yes, sir. कितना फ्रिक्शन बहुत कम हो जाता है वहां पर। अगर ऐसा ही फ्लोर होता जहां पर फ्रिक्शन बिल्कुल कम होता तो हम वॉक नहीं कर पाते। सर बाथरूम में नहीं होता है? बाथरूम में होता है ना, तो कम होता है बेटा, तभी तो हम फिसल जाते हैं कभी कभी बाथरूम में, क्योंकि वहां पर क्या होता है बेटा, वहां पर जो सरफेस होती है वो ज्यादा स्मूथ होती है ना। Yes, और sir. फिर अगर वहां पर शॉप वगैरह होता है ना, शॉप वगैरह की वजह से क्या होता है बेटा, और स्मूथनेस आ जाती है कभी कभी, तो हम वहां पर फिसल जाते हैं। सर हम अगर सर ये जो हम चल रहे हैं सर, वहाँ पर भी स्मूथ सरफेस वाला सर लगाते हैं तो टाइल्स सर, अगर तो सर हम गिर जाएंगे। यस, आप गिर जाओगे, राइट, आप चल ही नहीं पाओगे, वहां पर चलना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। सर कीचड़ में भी गिर जाते हैं, कीचड़ होता है। किचन में, हाँ, तो वहाँ पर फ्रिक्शन की बात नहीं बेटा, वहाँ पर हम ऐसे ही जाते हैं क्योंकि हमारा बैलेंस बिगड़ जाता है। हमारा जो मेंटलिटी बैलेंस होता है बेटा, तो मेंटल का बैलेंस बिगड़ता है, तो पता नहीं होता है कि हमारा जो पैर है वो कितना अंदर जाना है। कीचड़ में फ्रिक्शन फोर्स नहीं है। मान लो यहाँ कीचड़ है बेटा, राइट, अब मुझे नहीं पता कि जो मेरा पैर है बेटा वो कितनी नीचे जाएगा, आप नहीं देख सकते ना कीचड़ में, आपको थोड़ी ना पता कि जो जाएगी कितने, इसलिए आपका मेंटली बैलेंस बिगड़ जाता है उस टाइम पे, आपको पता नहीं चलता। जो हमारा पूरा ही बॉडी का पार्ट है उसे वर्क कौन करवाता है? माइंड, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. अगर हमारा माइंड उस टाइम पे सोच रहा है कि सरफेस ऊपर आ जाएगी, लेकिन सरफेस नीचे आती है, मान लो नीचे आई,
तो इतने कम टाइम में माइंड ये नहीं सोच पाता है कि अब मुझे क्या करना पड़ेगा, और हम गिर जाते हैं। अगर वो कर लेता कुछ कि नहीं हम इधर फोर्स लगा दें, हम थोड़ा सा लेट आगे कर दें, अगर हम कर पाते तो नहीं गिरते हैं। लेकिन अब बहुत ही कम टाइम मिलता है माइंड को, तो माइंड हमारी बॉडी को नहीं बता पाता है, बॉडी पार्ट्स को नहीं बता पाता है कि अब क्या करना है। क्विक सेंड हाँ, अगर बहुत सर ज्यादा उसमें सर फास्ट क्या होता है किसमें बेटा? सर क्विक सेंड में? क्विक सेंड मीन्स सर मतलब सर वो फंस नहीं जाते सर अंदर? यस सर क्विक सेंड। सेंड में, ओके, सेंड में बेटा क्या होता है कि जो उसके पार्टिकल्स होते हैं वो पहले दूर दूर होते हैं, और जैसे आप पुश करते हो ना, पुश अप्लाई करते हो, तो उस जगह क्या हुआ, पार्टिकल पास पास आ गए, और उनको क्या, इधर वाले पार्टिकल जो दूर दूर थे वो थोड़ा सा इधर चले जाएंगे, इधर वाले पार्टिकल थोड़ा सा इधर चले जाएंगे, नीचे वाले पार्टिकल नीचे चले जाएंगे, राइट। तो क्या हुआ, आपका पैर और नीचे चला जाता है, राइट। सारे पार्टिकल क्या होता है, डिस्प्लेस हो जाते हैं उसकी वजह से, आप फोर्स लगा देते हो। अब हम वापस से फ्रिक्शन फोर्स पा जाए, नहीं तो चैप्टर खत्म नहीं हो पाएगा, राइट। ओके सर। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट यही है कि हमारे लिए इसका एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। लाइक अगर हम चल पाते हैं, अगर हम चल पा रहे बेटा, तो उसका रीजन है फ्रिक्शन फोर्स, यस और नो? उसका रीजन क्या है? फ्रिक्शन फोर्स। लेकिन बहुत बड़ी बड़ी मशीनरी है बेटा, बैकग्राउंड साउंड किस तरह, लेकिन समझो हमारे पास बहुत बड़ी बड़ी मशीनरी होती है बेटा फैक्ट्री में, उसके पार्ट्स के बीच में भी फ्रिक्शन लगता है, यस और नो? पार्ट्स के बीच में फ्रिक्शन लगता है, तो वो क्या करता है, वो हमारे लिए लॉस का रीजन बन जाता है। कभी कभी आपने देखा तो हम उसको ऑयलिंग करते हैं, मशीन में करते हैं, ऑयल डालते हैं, ऑयलिंग करते हैं, ग्रीसिंग करते हैं, ये सब उसी की वजह से करते हैं ताकि फ्रिक्शन कम हो जाए। अगर आपको फ्रिक्शन कम करना है तो क्या करना पड़ेगा, वहां पर स्मूथनेस लानी पड़ेगी, स्मूथ करना पड़ेगा सरफेस को। तो कैसे करते हैं फिर हम? ऑयल यूज करते हैं, ग्रीस यूज करते हैं। तो कभी कभी तो एडवांटेज है, जैसे कि मुझे वॉक करना है तो एडवांटेज है फ्रिक्शन का, ये सुनो। कभी कभी डिसएडवांटेज है, जैसे बड़े बड़े मशीनरी पार्ट्स हैं उसमें भी फ्रिक्शन लगता है, वो डिसएडवांटेज है। सपोज करो जो रफ सरफेस है वहां पर हमारे जो व्हीकल्स होते हैं उसको मोशन करना है, तो हो सकता है उसमें बेटा ऑयल ज्यादा यूज हो, राइट, ज्यादा फोर्स लगाना पड़े, तो वो भी डिसएडवांटेज हो सकता है। लेकिन व्हीकल्स को आगे बढ़ने के लिए आगे अगर मोशन करना है तो फ्रिक्शन तो चाहिए थोड़ा बहुत, तो वो एडवांटेज भी है। पर सर, तो यहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। यस सर आई हैव डाउट सर, मशीनरी में क्यों लॉस क्यों होगा, प्रॉफिट होगा ना सर? क्योंकि अगर किसी भी मशीन का कोई पार्ट है उसमें अगर फ्रिक्शन आएगा तो जल्दी से ज्यादा वर्क करेगा। नहीं बेटा देखो, उसे वर्क करने के लिए हो सकता है थोड़ा बहुत फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट हो सकता है उसको रोटेशन करने के लिए फ्रिक्शन का रिक्वायरमेंट हो, लेकिन अगर ज्यादा फ्रिक्शन होगा बेटा तो फ्रिक्शन उसको रोकेगा। फ्रिक्शन का काम क्या होता है बेटा? रिलेटिव मोशन को रोकना, राइट। ये मोशन नहीं करने देता दो पार्ट के बीच में, ये इसको रोकता है। अगर जहां स्लिपिंग होती है बेटा, ये स्लिपिंग क्या हो रहा है? मोशन है, ये सुनो, अब इसको रोकता है। फ्रिक्शन क्या करता है बेटा? इसको रोकने का ट्राई करता है। अगर यहाँ फ्रिक्शन है तो वो क्या कर रहा है बेटा? आपके लेग को पीछे जाने से रोक रहा है, तो ये पार्ट्स को रोटेट करने से रोकता है, ये सुनो। तो ये जो एक्टिविटी है उसको, इसकी जो रेट है उसको डिक्रीज कर देता है बेटा, एक्टिविटी रेट को डिक्रीज करता है। जो काम फास्ट होना चाहिए था वो स्लो होता है, राइट? अंडरस्टूड और नॉट? फ्रिक्शन करता क्या है? Yes, sir. रिलेटिव मोशन को रोकता है। रिलेटिव मोशन मीन्स जहां पर स्लिपिंग हो रही है उसको रोकता है। फ्रिक्शन का काम यही है बेटा। अगर मेरा पैर स्लिप हो रहा है पीछे की तरफ, उसको क्या करेगा? रोक देगा। फ्रिक्शन उसके अपोजिट फोर्स लगाता है और रोक देता है, राइट? तो फ्रिक्शन के कुछ एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज है, लेकिन हम इसे यहाँ पर नहीं पढ़ करके नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे कि अगर एडवांटेज है तो कौन से एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है तो कौन से डिसएडवांटेज है। अब डिसएडवांटेज है तो उसे कम भी करना, हमें रिड्यूस करना पड़ेगा डिसएडवांटेज को, तो कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, कौन कौन से केमिकल्स हम यूज करेंगे, कैसे लुब्रिकेशन करेंगे जिससे कि फ्रिक्शन कम होगा, ये सब डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ फील लेंगे फ्रिक्शन का। तो फर्स्ट, अगर फ्रिक्शन वर्क करता है कौन सी सरफेस पे करेगा? स्मूथ सरफेस पे या फिर रफ सरफेस पे? रफ।
ज्यादा कौन सी सरफेस पे करेगा? जो सरफेस ज्यादा रफ होगी या जो सरफेस कम रफ होगी? ज्यादा ज्यादा रफ। ज्यादा रफ। अच्छा, करना है लेकिन टच में नहीं है, तो फ्रिक्शन लगना पॉसिबल है कि नहीं? नो सर। नो सर। है ना? मीन्स हमें क्या चाहिए? सरफेस, दो सरफेस है ना, टू सरफेस है, उसके बीच में क्या चाहिए बेटा? टच चाहिए। जैसे एक सरफेस इसका नीचे वाला पार्ट है, राइट, एक सरफेस से मेरा हैंड का अपर पार्ट है, राइट। अभी इन दोनों के बीच फ्रिक्शन जीरो है या कुछ है? फ्रिक्शन है क्या इसके बीच में? नो सर। अब मैंने बोला अब बताओ, अब Yes, बताओ, sir. मैं इसको प्रेस करूंगा। अबे, क्योंकि मेरे हाथ जो स्मूथ नहीं है, मेरा हाथ थोड़ा कुछ ना कुछ इसमें बेटा रफ है। सर आई हैव डाउट। वो इसको रोक रहा है। देखो बेटा, Sir, I एक मिनट सुनो, एक मिनट सुन लो। अगर मैं आगे की साइड फोर्स लगा रहा हूँ, इसको रोक कौन रहा है? इसको कौन रोक रहा है? वो फ्रिक्शन, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन। यस, अब बोलो बेटा, पूछो डाउट। सर कभी कभी रोड पे जो सैंड के पार्टिकल्स होते हैं सर, वो भी रोड को रफी बनाते हैं, तो सर फिर भी फ्रिक्शन रिड्यूस क्यों हो जाता है? नहीं बेटा, रफ पार्टिकल कभी कभी क्या होता है कि रफ नहीं बनाते उसको देखो, अगर आपका पोर्शन पे डिपेंड करता है बेटा, आपको कितना पोर्शन टच कर रहा है। अगर मैंने यहाँ पर सैंड पार्टिकल रख दिए, एक्स से बेटा मेरा ये क्या है, पूरा पोर्शन टच कर रहा है अच्छे से, लेकिन इसमें पार्टिकल रख दिए, टू सैंड पार्टिकल, राइट। दिस आर टू टाइप्स ऑफ सैंड पार्टिकल। अब ये क्या करने लगे बेटा, ये सैंड पार्टिकल है, उस पर डिपेंड करेगा सैंड पार्टिकल कौन सी शेप के हैं। अगर वो किसी से बेटा स्मूथ शेप के हैं, राइट, लाइक ए टायर, तो क्या करेगा बेटा, फ्रिक्शन को कम कर देगा। ये सुनो, स्मूथनेस आएगी यहाँ पर, ये सुनो। यस सर। तो डिपेंड करेगा आपकी सैंड पार्टिकल के शेप पर, उसका टेक्सचर कैसा है, मीन्स उसका जो ऊपर का जो कवर है, मीन्स बात करें कि वो स्मूथ है या फिर वो किस टाइप का है। मान लो एंगुलर टाइप का शेप है, तो हो सकता है बेटा वहां पर वो हमें क्या दे, फ्रिक्शन ज्यादा कर दें, राइट। लेकिन अगर वो बिल्कुल ऐसे हैं, रोल टाइप के हैं, टायर टाइप के हैं, रोलिंग वाले, स्मूथनेस, तो वो फ्रिक्शन को कम कर देंगे। ठीक है, डिपेंड करेगा आपके सैंड पर, टाइप ऑफ सैंड पर। समझना है कि नहीं बेटा? समझना है बात? यस सर। यस सर। तो ये जो फोर्स होता है किस पे डिपेंड करता है बेटा? टच पर। जब तक आपका सरफेस टच नहीं करेगा ये नहीं लगेगा, जितना ज्यादा टच करेगा उतना ज्यादा लगेगा। अगर मैं एक ही जगह से टच कर रहा हूँ, ये लो, एक जगह से टच कर रहा हूँ तो मेरा कम फोर्स, और पूरा टच कर रहा हूँ तो ज्यादा फोर्स, एक जगह से टच कर रहा हूँ तो कम फोर्स। तो डिपेंड करेगा आपका कितना सरफेस टच कर रहा है, ये सुनो, उससे भी डिपेंड करेगा। तो थोड़ा फील हुआ फ्रिक्शन फोर्स के बारे में? फील हो रहा है कि नहीं, किस टाइप का फोर्स है? फीलिंग आ रही है? यस सर। चलो अब इसे हम बुक से कंप्लीट करते हैं, राइट। देखो ऐसे इसको डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे ही, लेकिन थोड़ा पढ़ लेते हैं, ठीक है। रिकॉल नॉट विजिबल। नॉट विजिबल? यस सर विजिबल। सर विजिबल। विजिबल ना? ओके विजिबल। ओके, फ्रिक्शन। Recall some of your experience. A ball rolling along the ground, gradually slow down and finally come to rest. Yes or no? जब अगर हम किसी बॉल को बेटा पुश अप्लाई करके छोड़ दें तो कुछ टाइम बाद उसका स्पीड क्या होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? डिक्रीज। कुछ टाइम बाद वो रेस्ट पर आ जाएगी। तो ऐसा क्यों कर रही है? कौन सा फोर्स उसे रोक रहा है बेटा चलने से? कौन सा फोर्स रोक रहा है? फ्रिक्शन। There are a friction force between surface of ball and floor, right? Okay. Next, when we stop pedaling a cycle, बाइसिकल को जब पेडल देना शुरू करते हो, है ना, तो फास्ट हो जाती है, लेकिन जैसे हम पेडल देना स्टॉप कर देते हैं उसका स्पीड क्या होगा बेटा?
स्लो डाउन हो जाता है, yes or no? Yes, sir. If Yes, you sir. stop pedaling a bicycle, Yes, sir. it becomes slow down. It gradually slow down and finally come to rest. Why it happen? Because of friction. Friction. Friction force between tire and road surface, right? Next, a car or scooter also come to rest when its engine is switched off, yes or no? Again, due to friction force, Yes. right? Similarly, a boat come to rest if we stop rowing it. ऐसे आप जो बोट होती है वो भी बेटा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, अगर इसका आप रोविंग नहीं करोगे या तो हैंड से या फिर इंजन से रोविंग नहीं करोगे तो वो रेस्ट पर आ जाएगी ड्यू टू वाटर फ्रिक्शन and friction between water and surface of boat. Can you add some more such experience? Yes, like we walk, yes or no? We push a box, we apply push a box, but box does not move due to friction force, right? This is all example of friction force. In all these situations, no force appear to be acting on the object, yet their speed gradually decrease. हमें दिखता तो कैसा है बेटा कि कोई फोर्स नहीं लग रहा है, जैसे आपने बेटा बॉल को पुश करके छोड़ दिया तो आपको क्या लगेगा कि यहाँ तो कोई फोर्स नहीं है, लेकिन वहां पर कौन सा फोर्स होता है बेटा, कौन सा फोर्स होता है? फ्रिक्शन फोर्स, राइट? Their speed gradually decrease and they come to rest after some time. What cause a change in their state of motion? बता बेटा कौन सा चेंज है यहाँ पर, क्वेश्चन पूछ रहा हूँ. What cause a change in their state of motion? Friction. Could some force be acting on them? उसने पूछा could some force be acting on them? Yes. Can you guess the direction in which the force must be acting in such case? कौन सी डायरेक्शन में लगेगा बेटा फोर्स? कौन बताएगा? अगर स्पीड कम हो रही तो कौन सी डायरेक्शन लग रहा है? अपोजिट टू मोशन, अपोजिट टू रिलेटिव मोशन. किसकी डायरेक्शन में लग रहा है? अपोजिट टू रिलेटिव मोशन. ठीक है, जहां पर स्लीपिंग होगी बेटा उसकी अपोजिट डायरेक्शन से लगेगा. ठीक है, मैं अटेंडेंस लेता हूँ, फिर नेक्स्ट टाइम पे यहीं से कंटिन्यू करेंगे, राइट? इसको पढ़ के आना बेटा. जो पढ़ा बेटा समझ में आया कि नहीं? Okay, sir. Yes, sir. No, sir, I have doubt. I have doubt. 1 minute. Okay. Sir, is it possible that at a time two force work? Yes बेटा. Sir, is it possible that at a time two force work together? Yes, it is possible. Sir, Yes. take an example that that there is a slide and sir उसकी जो सरफेस है वो एकदम मतलब उस पे फ्रिक्शन होता है वो रिड्यूस होगा, और मैंने वहाँ पे एक बॉल डाली उसका भी जो सरफेस है वो भी एकदम मतलब दोबारा पूछो बेटा जीरो से. क्या पूछना चाह रहे हो, एक बार एक्सप्लेन करो अच्छा. सर मतलब जैसे कि कोई स्लाइड है उसका जो सरफेस है वो उसका जो फ्रिक्शन है वो रिड्यूस है, मतलब सर अगर उस पर कोई भी चीज होगी तो उसका जो फ्रिक्शन होगा वो रिड्यूस हो जाएगा, मतलब वो पूरा सॉफ्ट है. तो सर अगर हमने उस पर कोई बॉल डाली तो सर फ्रिक्शन की वजह से भी वो नीचे जाएगी और ग्रेविटी की वजह से उसकी स्पीड भी बढ़ जाएगी ना. ग्रेविटी की वजह से बेटा स्पीड बढ़ेगी, लेकिन फ्रिक्शन स्पीड नहीं बढ़ाएगा, वो डिक्रीज करेगा. अच्छा स्लाइड भी है ना बेटा, तब भी फ्रिक्शन. कभी कभी आपने देखा, देखो ये स्लाइड है, ये स्लाइड है कि नहीं? इंक्लाइंड है? यस सर. यस सर. यस सर. Yes, sir. ये मोशन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कौन No, रोक रहा है? sir. कौन रोक रहा है? Friction. फ्रिक्शन फोर्स. समझना बेटा, डाउट क्लियर हुआ? बट सर कौन स्लाइड रोक रहा है? बट सर
फ्लाइट का जो सरफेस है वो एकदम सॉफ्ट है, कुछ भी रफ नहीं, तो जाएगा ही नहीं। तो फिर फ्रिक्शन कम हो जाएगा, बिल्कुल नहीं के बराबर हो जाएगा। तो क्या करेगा बेटा, फिर ऐसे स्लिप होना शुरू कर देगा, राइट। स्लिप कौन करवा रहा है? ग्रेविटी फोर्स। स्लिप कौन करवा रहा है? ग्रेविटी फोर्स। रोक कौन रहा है? फ्रिक्शन फोर्स। लेकिन अगर आपने बोला कि सर हमारा सरफेस बहुत ही स्मूथ है, तो उस केस में फ्रिक्शन फोर्स बहुत ही कम हो जाएगा, ठीक है। तो और फिर सर वो थोड़ा अगर उस टाइम पर ग्रेविटी नहीं होगी सर, तो ऑब्वियसली स्पीड तो बढ़ेगी ही ना, क्योंकि फ्रिक्शन रिड्यूस हो रहा है। तो ग्रेविटी नहीं होगा तो फ्लाई करना शुरू कर देगा। उसे क्या पड़ी है वहां रहने की? ग्रेविटी नहीं होगा तो फ्लाई करेगा बेटा, उसे मजे है। फिर तो वो क्यों रहेगा वहां पर? ग्रेविटी ने तो उसको रोका हुआ है, ग्रेविटी से नीचे लाने का ट्राई कर रही है बेटा। अगर यहाँ कुछ होता ही नहीं तो फिर ये इसके ऊपर क्यों रहना चाहेगा? अगर यहाँ पर बेटा ये है तो ये किसकी वजह से है? ग्रेविटी की वजह से। अगर नहीं होगा तो फ्लाई करेगा आराम से, मस्त। ये यहाँ क्यों रुका रहेगा? नहीं समझ में आया? आपने बोला फिर ग्रेविटी नहीं होता तो फ्लाई करता। Yes. Yes, sir. Okay. Okay. Bye everyone. Bye, sir. Bye.